Assalamu alaikum everyone, and thank you, Yasir Saab and rest of the Dubai chapter people for giving me the opportunity. It gives me immense pleasure to be with you and express myself. I hope every one of you keeping yourself well and safe. So my name is Mustafa Kamal. I'm currently working as Director Business Finance, K Electric, part of transmission business team at KE, and I am also a certified director, leadership trainer, and coach, and leading the largest finance trainee program in industry, which includes ICAP, ICW, ACC, and SEMA for the last 3 years. I joined EY for Siddharth Heather back in 2005, and I was reporting to Akil Merchant. Then I have subsequently transferred to Salim Chunai and worked with Bashir Juma as well. I qualified in 2007 in first attempt, Alhamdulillah, and then I was seconded to EY Jeddah for 3 months period, and I joined industry here at K Electric back in 2009 February, and I was reporting to Khalil back then, Khalilullah Sheikh, and I worked with him for 3 years. And first and foremost questions usually people ask why you actually coming for the election. So actually it was back then in 2009 when I was Khalilullah Sheikh's campaign manager for the Southern Region Committee. So at that time I had the opportunity to meet a lot of people, build a lot of relationships, and actually got chance of election and all the good or bad things about the election back then. So I thought one day I would also be contesting for the elections. So over the periods of 14 years at K Electric, I have been doing a marvelous year in terms of the restructuring, reorganization, turnaround of K Electric, and I've been part of uh, business side rather than the core accounting and reporting side. So it gives me a different experience working with the people of Harvard, MIT, and brilliant minds here at K Electric. And I worked here for 13 years, but I got the exposure of 30 years plus 3 times more what I have worked here. So the point is that what I'm bringing for the ICAP and its members. So I have two agenda items. One is my vision. It's about the long-term vision. Our vision should not be limited to 2, 3, 4 years consult term. It should be 20, 30 years view. And what I mean is that that vision should translate into numbers. How the future will look like, how our member will look like, how the finance will look like. So मैं यहाँ बात करता हूँ कि 2050 2040 को target करें, and then we will make a vision. Currently हमारा vision है कि to be the hallmark in accountancy in Pakistan. But why not in globally? हमें global position किस तरह करना है? Where do we want to see ICAP और CA members across the globe? ठीक है, क्या दुनिया में कहीं से बैठ के भी हम सीए पाकिस्तान कर सकते हैं? हमारी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए? दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। और इसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें घूमती हैं जो कि मेरे मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। रिसर्च पीडब्ल्यूसी की रिसर्च है कि 2050 में पाकिस्तान विल विन टॉप 20 इमर्जिंग इकोनॉमीज। हमें वो देखते हुए अपनी पॉपुलेशन को, अपने जीडीपी को हम एक नंबर्स को टारगेट कर सकते हैं। देन वी विल मेक माइलस्टोन्स, गोल्स बनाए, 5 years 2 years 3 years के प्लान्स बनाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बिल्ड करें, कोर कैपेबिलिटीज बिल्ड करें एट द इंस्टीट्यूट लेवल जो एग्जीक्यूशन कर सकेंगे विजन को। एंड देन इन्वेस्ट इन द स्ट्रेटेजिक investments in IT infrastructure, human capital at the ICAP level. And then irrespective if I am there or anybody else is there, एक proper mechanism चलता रहे long term vision की achievability का. This is one part, and the other part is actually creating value for our members. Right, this is a very important point कि हमें अपने तमाम stakeholders के लिए value create करनी है, be it our overseas members, local, young, senior, industry, firms. ठीक है, and we have a lot of other stakeholders as well, like government of Pakistan, regulators, like different students, ICAP its own management, and तमाम लोगों के across the value chain. क्योंकि ये देखने की जरूरत है कि ICAP की या CA की लाइफ साइकिल 4 सेगमेंट्स पे जो है मुश्तमिल है। नंबर 1 इज द एंट्री लेवल, क्या हम बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं? ठीक है, आर इज द CA प्रोफेशन इज फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोफेशन फॉर ऑल द among all the accounting profession, number 1. नंबर 2, जब बच्चा आ जाता है वो कितना रिटेन रहता है, कितना कितना पासिंग रेशियो है, उसको क्या एजुकेशन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है फर्म्स में, उसका हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस इज द सेकंड सेगमेंट। थर्ड इज द पासिंग पॉइंट पे, जब वो पास होता है उसके पास जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है। एंड फोर्थ इज एक्चुअली द पोस्ट क्वालिफिकेशन जॉब में, जब वो इंडस्ट्री में या फर्म में काम करता है तो उस पर हमारी इंगेजमेंट लेवल क्या है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं ओवरसीज के हवाले से। जब मैं बात करूं अगर, तो ओवरसीज की रिप्रेजेंटेशन एट द काउंसिल लेवल इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इट शुड बी देयर, क्योंकि जब मैं स्टेक होल्डर की बात करता हूँ तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स ओवरसीज हैं। 1/3 ऑफ आवर मेंबर्स आर फ्रॉम ओवरसीज। कोलैबोरेशन है, रेसिप्रोसिटी की बात करें, श्रीलंका में ICAW ने किया है कोलैबोरेशन।
उसमें एक बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। हम उस तरह के मॉडल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट रेसिप्रोसिटी, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन। नंबर थर्ड ये कि पेड एम्प्लॉयड हम रखें मुख्तलिफ चैप्टर्स के ऊपर, और वो ऐसा बिजनेस के तौर पे लेके चले। मेरा पॉइंट है कि हमारी जो काउंसिल है वो वर्क करे लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और रिस्पेक्टिव उन पे हमें एक्सपर्ट 2-3 एरियाज पे ही चाहिए, ऑडिट पे और एश्योरेंस वगैरह पे। बाकी जो लोग हों वो काम कर रहे हो लाइक बीओडी मेंबर्स। हमें किसी चीज की एक्सपर्टीज चाहिए, वी शुड हायर द फर्म एंड गेट द एक्सपर्टीज एंड गेट द सर्विस डन। बट हमें जो लोग हैं विजनरीज, स्ट्रेटेजिस्ट, लीडरशिप लेवल के लोग जो लीडरशिप को समझ सकते हैं, और नेगोशिएटर। फिर ओवरसीज के हवाले से दो क्विक पॉइंट्स, क्विक डिसीजन होने चाहिए ओवरसीज के मैटर्स के ऊपर, क्विक एंड फास्ट डिसीजन। ठीक है, कमेटीज में डाल देना, फिर सब कमेटीज में डाल देना, फिर 2-2 साल लगाते रहना। आई डोंट थिंक कॉर्पोरेट में इस तरह होता है। केपीआई होते हैं, फास्ट ट्रैक मूवमेंट हो रही होती है। फाइनेंशियल हमें जो है वो सेविंग करना है, फाइनेंशियल जो है वो पावर देनी है अपनी चैप्टर्स को। 1 बिलियन से ओवर हमारे जो है सरप्लस फंड है। बट व्हाट अबाउट आवर चैप्टर्स? वहां पे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने पास से मेंबर्स पैसे खर्च करके टाइम देके जो काम कर रहे होते हैं। लॉजिस्टिक के हवाले से हेल्प करनी और रिकनेक्ट। हमारे लोग फेसबुक के कंट्रोलर हैं, अमेजन में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं। हमें इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। और लास्ट मेरा जो आइटम है वो है ऑडिट से रिलेटेड। आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ ऑडिट, बट आई नो द ऑडिट इश्यूज इन गोइंग ऑन, और 8-10 आइटम्स आई कैन शेयर विथ यू, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑडिट क्वालिटी, एओबी का मैटर है। उसमें अगर हम जैसे लोग होंगे जिनका अपना कोई ऑडिट में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो वी कैन हैव अ चेक ऑन द ऑडिट काउंसिल मेंबर्स कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग अगेंस्ट द ऑडिट थिंग्स। और उसकी पूरे मेरे पास 10-12 ऑडिट रिलेटेड इश्यूज भी लिखे हुए हैं। आई कैन शेयर विथ यू माय प्रेजेंटेशन एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा, यू आर वेरी न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो है ना आपने हिम्मत करी और आए, और हार जीत जो भी हो, लेकिन बड़ा अच्छा आपका विजन। आपने एक बात करी कि पेड एम्प्लॉय ओवरसीज के एम्प्लॉय, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बाद फिर आसिफ कलीम साहब का कोई क्वेश्चन भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज। अच्छा, जैसे हम दूसरी गवर्निंग बॉडीज को देखते हैं पाकिस्तान में भी इवन, कि वहां पे लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, इसके लिए पेड एम्प्लॉयज उन्होंने रखे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे जो की चैप्टर्स हैं लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, इसमें हमने क्योंकि ऑफिस वगैरह भी खुले हैं, तो वहाँ क्योंकि अगर हमने ग्लोबल पोजिशनिंग करनी है अपने आप को, तो हमें वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट के लोग रखने चाहिए जो कि आई कैप के एम्प्लॉयज हों। रादर देन हम अपने मेंबर्स के ऊपर पुश करें, उन पे प्रेशर डालें कि यार आप बिजनेस लेके आए, और वो वहीं पे जो है एक बिजनेस एक्टिविटी भी आई कैप के लिए जो है वो क्रिएट कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट आई मीन। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सैटिस्फैक्टरी। थैंक यू आसिफ, आसिफ कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। पहले तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई इंडस्ट्री का बंदा ये कोशिश करता है कि वो आई कैप के साथ अटैच होने की कोशिश करे, तो आई सैल्यूट योर एफर्ट। और मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाइल वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर, what ICAP can do to enhance these roles in public sector for chartered accountants? ओके, थैंक यू आसिफ साहब। मैं बहुत ही क्लोजली देखता हूँ, जब मैं 2009 में भी के इलेक्ट्रिक ज्वाइन की थी, तो हम एकदम से पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में आ रहे थे। तो एक बहुत बड़ी स्पेस है हमारे पास पब्लिक सेक्टर में, बीट एफबीआर, गवर्नमेंट की अदर ट्रेड बॉडीज ले लें आप, एससीसीपी, ट्रेड बॉडीज की हम बात कर लेते हैं। हम अपने मुख्तलिफ, मैं ये समझता हूँ हर इंसान के, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान अपने पोटेंशियल पे जो है वो 4-5% काम कर रहा होता है, बाकी नहीं कर रहा होता वो अपने पोटेंशियल। मुझे ये लगता है कि हम आई कैप को भी अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करा अभी तक। हम कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना आउटशाइन कर सकते हैं, वी नीड टू सी अबाउट इट। और इसमें हम मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज, मुख्तलिफ गवर्नमेंट, क्योंकि एक अच्छी चीज के इलेक्ट्रिक में मैं यहाँ पे हूँ तो हम गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, गवर्नमेंट माइंडसेट को किस तरह डील करना है, इन्फ्लुएंस किस तरह करना है। देखिए बहुत सारी चीजें, या मैं तो समझता हूँ सारी ही चीजें आपकी जो है वो इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स पे बेस करती हैं। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम ट्रेड बॉडीज, रेगुलेटर्स, एससीसीपी, ओगरा, पैकरा, बहुत सारी ट्रेड बॉडीज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, एफबीआर, ठीक है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, इसमें हम गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल से, मेरा ख्याल है शायद हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये चीज, और वहां पे भी क्वालिटी की हमें जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो योर क्वेश्चन इज क्वाइट वैलिड एंड वी नीड टू वर्क, और बहुत बड़ा हम इसको वैक्यूम को फिल कर सकते हैं फ्रॉम द आईकैप एंड इट्स मेंबर्स पर्सपेक्टिव। थैंक यू मुस्तफा। थैंक यू खुरम मुस्तफ़ा। भट्टी साहब फ्रॉम अज़रबैजान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अभी एजुकेशन के बारे में जिक्र किया, which I think is very important for the institute and especially future. और दूसरी तरफ it's good that you are from industry. तो एक तो थोड़ा सा बताइएगा कि आपका exactly क्या एक्शन प्लान होगा
if you inshallah get elected, कि कैसे आप number of students को attract करेंगे और ultimately कैसे हम plan करेंगे कि number of ICAP members increase करें, जिस तरह बाकी bodies पाकिस्तान में हमारी market में बैठ के हमसे 3 गुना ज़्यादा members बना चुकी हैं in probably less than 20% time we spent in our market. और दूसरा ये कि एक क्वेश्चन हमारा कल भी यही मैंने क्वेश्चन रेज किया था और उसका एक आंसर ये था कि हमारे राइट्स के तो अपने इश्यूज है, हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है फर्म्स में ट्रेनिंग की. हमारा जो एजुकेशन है उसका एक पार्ट क्वालिफिकेशन और दूसरा पार्ट ट्रेनिंग है, while ACCA doesn't need a training, so that's why they have more members. Though I was not very impressed with the answer, but अगर ये एक bottleneck है, तो you sitting in industry, how will be able to persuade कि यार अगर हमारे पास firms में ये limitation है, तो how can we actually use industries to train our people and ultimately increase our numbers? अच्छा, थैंक यू वेरी मच खुरम साहब. जो पहला आपका सवाल है ना, इसका काफी लंबा जवाब है, बट मैं चाहूंगा कि मैं जो है वो ब्रीफली आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं कि मैं क्योंकि 3 साल से मुख्तलिफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बॉडीज के साथ डील कर रहा हूं, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन ये है जो आपके आईकैप को देखना चाहिए. वो हम एक तो रिसर्च करें, नंबर 1. ऑलरेडी कुछ रिसर्च अवेलेबल भी है. जीडीपी पाकिस्तान का कहाँ होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग कहाँ पे हो रही होगी, और दिस इज हाउ एग्जैक्टली अदर बॉडीज आर डूइंग. ICW की अगर मैं बात करूं, उनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ. 2030 की रिस्ट्रक्चरिंग पे वो लोग प्लान कर रहे हैं. ठीक है, उनका जो विजन है, इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड और एनीथिंग लाइक दैट. इट्स अबाउट इनेबल द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड. तो इस पे मेरा पूरा एक पेज का जो है वो थीसिस है, एक पेज का मतलब शॉर्ट ब्रीफ, जिसके अंदर मैंने बात की कि हम किस तरीके से मेंबरशिप बेस को बढ़ा सकते हैं. मलेशियन इंस्टीट्यूट के 40,000 मेंबर्स हैं, और आज का जो दौर है मैं समझता हूँ वो सारा नेटवर्किंग, रिलेशनशिप, इसको लेवरेज करने का दौर है. जितने आपके मेंबर्स होते हैं, आप प्रोटेक्शन लेते हो, आप उन लोगों को अपनी ब्रांडिंग करते हो. अगर आपकी क्वालिफिकेशन इतनी छोटी सी तादाद में 8,800 की मेंबरशिप बेस है, इवन 22-23 करोड़ की आबादी में, और दुनिया की आबादी में तो हम 8,800 तो आटे में नमक भी नहीं होगा. तो उस केस में हम कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे लेवरेज लें, तो इसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है. हमें फिर उस चीज से ड्राइव करना है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो उसकी अगेंस्ट में स्टूडेंट कितने होने चाहिए, स्टूडेंट का पासिंग रेशियो क्या होना चाहिए, और फिर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या आज फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ क्वालिफिकेशन है, हम कितना रीच आउट करते हैं, हम रूरल एरियाज में कितना जाते हैं. नॉर्थ में बहुत ज्यादा तेजी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फैसलाबाद, सियालकोट में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. तो इसके पीछे पूरी एक जो है फिलॉसफी, एक अनकन्वेंशनल विजडम या अनकन्वेंशनल थिंकिंग को लेकर आना पड़ेगा, जिसमें हम एक थिंक टैंक बनाएं. जो आप कह रहे हैं ना एक्शन प्लान, मेरा एक्शन प्लान ये होगा, मैं प्रपोजल जाके पुट करूंगा इंशाल्लाह इफ इलेक्टेड, एंड आई विल आस्क द काउंसिल तो एक्चुअली सबको इस पॉइंट पे लेके आना, बीइंग अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव से, कि ये मेरा इंडिविजुअल नहीं, एक कंबाइंड काउंसिल का गोल होगा. और फिर हम एक थिंक टैंक बनाएं जो कि बेसिकली इस चीज के ऊपर टारगेटेड टाइमलाइंस के साथ एक्शन लें कि यार अगले जो है 2 या 3 महीने में हमारे पास हम रिसर्च करके एक पूरी प्रोजेक्ट चार्टर बनाए इसका. So this will be my first action item, and I will be happy to share my manifesto with you, which entails all the thoughts about how to take the leadership out of the membership further. सेकंड, जो आपने बात की कि मेंबरशिप के लिए चैलेंज है मेंबर्स के लिए कि स्टूडेंट्स के लिए कि आर्टिकल्स की बहुत ही शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है. 1000 से ज्यादा आपके जो है वो स्टूडेंट इस वक्त आर्टिकल्स के लिए जो है वो आउटसोर्स प्रोफेशन है. बिग 4 के अलावा वो कहीं और जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने एसएमपीज को कभी ब्रांड बनाया ही नहीं. पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि बिग 4 ही सिर्फ ट्रेनिंग करा रही हो. ठीक है, एसएमपीज ट्रेनिंग करा रही होती हैं. एक अच्छी चीज जो 4 साल पहले हुई, वही इंडस्ट्री में ट्रेनिंग का ओपन हो जाना. And I am glad that I've been part of the finance training program here as a head, and I have been witnessing the 20 plus जो है CA trainees and 80-90 plus overall trainees. So I know what from the design thinking perspective what are their needs. और हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री और आर्टिकल की ट्रेनिंग में मसला है. इंडस्ट्री की ट्रेनिंग इज गुड एंड इक्वली गुड, एंड फ्यूचर में इट विल बी मोर बेटर देन द फर्म ट्रेनिंग. दिस इज माय बिलीफ, बिकॉज इंडस्ट्री में बच्चा जनरल मैनेजमेंट का जो है वो टैग लेके निकलेगा. he or she could be जो है वो CXO of strategy, finance और procurement, और ऑडिट का बच्चा निकलता है फिर ऑडिट और अकाउंटिंग का जो है वो टैग लेके. So we need to brand our industry as an SMPs in order to cater the surplus of trainees at the moment. थैंक यू वेरी मच मुस्तफा खान साहब, आपका टाइम देने का और सवालात के जवाबात देने के, हमारे और हम लोग ओवरसीज वालों को टाइम देने का. योर एजेंडास एंड योर वी विश यू अ गुड लक, और इंशाल्लाह ताला हम आप जैसे एनर्जेटिक लोग को देखना चाहते हैं काउंसिल में, और होपफुली लोगों को आपका पैगाम पहुंचेगा और लोग आपको वोट करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग. Thank you, Mustafa. My two cents. Thank you very much, first of all, and then I really appreciate your
deeply and an understanding of the ICAP matters and the possible solutions to that. So best of luck for that. Inshallah, hope to see you in the council. अच्छा, just a request, आप जो attendees हैं, I can share my manifesto with you and then you Yeah, can sure, circulate. sure. It will be very helpful for all. Please do that. ठीक है यासर, मैं आपको कर दूंगा and you can circulate all the attendees of this session. It will be very helpful for them and also will help me in the. Okay, thank you very much. जी, Assalamu मुस्तफा alaikum. साहब Thank you. शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है आपकी वो टॉक हमने सुनी, बड़ी इंकरेजिंग। मेरा नाम सरमद खान है, तो इंशाल्लाह जिस तरह आसिफ साहब ने कहा, यासिर, हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आपको हम इंशाल्लाह काउंसिल में देखें। Thank you. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। I look forward to your vote and also support.